Hello students, today I am going to explain Civics chapter number 21, Democracy in Action. In chapter number 20, I already see and the features of the democracy. In this chapter, we have to read about the democracy in action. As we know that democracy is the form of the government where the leaders are elected by the people. Leaders are or rulers are elected by the people. But how? How they elected? They elected through the voting, and voting is conducted through the elections process. Okay. तो voting क्या है और election process क्या है? All we will see in this democracy in action. तो first topic about this we will read about that universal adult franchise, about the elections, about the political parties and the role of the opposition. These 3-4 topics we will read in this chapter. But before that we will see here the newsmaker. What is there? Here is the picture of T.N. Seshan. T.N. Seshan was the 10th Chief Election Commissioner of India. He is credited with ensuring one of the most transparent and efficient election process in the country. He was awarded the Roman Magsaysay Award in 1996 for largely ending the malpractices in election held in the country. So, who was T.N. Seshan? T.N. Seshan was the 10th Chief Election Commissioner. We will read later on what is Election Commission and who are known that Election Commissioner. But here you have to know about only that T.N. Seshan was the person who was ending the malpractices in the election in the country. क्योंकि पहले क्या था कि जब इलेक्शंस होते थे तो उसमें बहुत सारे करप्शंस होते थे. बहुतों को वोट नहीं दिया जाता था, वोट देने का अधिकार नहीं होता था, वो या उन्हें रोक दिया जाता था और उसके बदले में जो दबंग होते थे, जो राउडी होते थे, वो वोट देने लगते थे और इससे फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाता था. जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर आते थे वो फेयर नहीं हो पाते थे. तो फॉर दैट ही स्टार्टेड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर ID cards. Through voter ID card, those are having the voter ID card, they can put the vote. One ID for one vote. So this process, this rectification has done only by the T.N. Seshan, and he was get the Raman Magsaysay Award in 1996. Now you can see here the institutional representation of the democracy. तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? इलेक्शन किसके थ्रू होता है? उनको इलेक्ट किसके थ्रू होता है? थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? It means that the right to vote given to all adult citizens, discrimination on the basis of reason, religion, caste, sex, प्रॉपर्टी, लैंग्वेज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो इनमें जिसको भी 18 ईयर्स से अबव हैं, दे आर हैविंग द राइट टू वोट. तो ये प्रोसेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू पीपल कैन, द सिटीजन कैन गिव द वोट एंड द इलेक्शन इज डन बाय थ्रू द इलेक्शन कमीशन. यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन होती है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है या इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. इनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होता. ये कमीशन है, इसके थ्रू वो क्या कराते हैं? इंडिया में इलेक्शंस कराते हैं. और वी हैव टू ऑल वी आर नोइंग दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. अब ये इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव कंस्टिट्यूंसी में प्रेजेंट करते हैं. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल होती है, कुछ रीजनल पार्टीज़ होती हैं. वी विल रीड लेटर ऑन. Now here you can see the pictures.
Here is somebody is people are standing with their voter ID card, and this process is started by the TN Sheshan. Here we can see that some rectification and then afterwards that the people started to the digital way, EVM, electronic voting machine, through they are giving the vote. Okay, now let's start line by line description. In India, elections are conducted after every 5 years to form the government. At the time of these elections, various political parties campaign for their candidates. What are these campaigns and rallies aimed at? Why is it necessary for the country to go फर्स्ट जनरल इलेक्शन एवरी आफ्टर 5 years? तो इस तरह से हम लोगों ने कई बार देखा है कि चेंजेस होते जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनाव होते जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. As stated in previous chapter, democracy is based on universal adult franchise. Universal adult franchise. जब तक किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड. वो अपने पीपल को इलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, अब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो सब डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. This means that the right to vote is given to all citizens of a country without any discrimination on the basis of religion, reason, caste, sex, property, language and educational qualification. तो डेमोक्रेसी में ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या जो मत देने का जो अधिकार है वो ना किसी का रिलीजन देखता है, ना वो कौन सा रीजन्स आया, ना कास्ट, ना सेक्स, प्रॉपर्टी, वो किसी के बारे में उनको कोई लेना नहीं देना होता है. दे आर एवरी पीपल आर हैव टू राइट टू वोट. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ सिटीजन, रिच और पुअर, लिटरेट और इलिटरेट, मैन और वुमेन इज सेम इन इंडिया. सबके लिए बराबर है इंडिया में. ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मत देने का जिनको अधिकार है उनके बारे में ये बातें कहेंगे. ये पहले ये था कि बहुत सारे जैसे जैसे लोग कंट्री इंडिपेंडेंट होते गए तो पहले शुरुआत में सिर्फ मेल वाज एबल टू गिव द voting, they are having the right of, but afterwards women came, they are having the right. So many amendment, so many rectification done in this way. You can see universal adult franchise is the basis of representation all levels of government. All Indian citizens who have attained the age of 18 are given the right to vote. ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट. ये नहीं कि आपने यू आर हैविंग राइट ऑफ वोट तो आप सभी जगह अपनी वोट डाल सकते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आप वोट दे सकते हैं. आप सिर्फ वन वोट, यू आर द हैविंग द पावर ऑफ ओनली वन वोट, which means that every citizen of India can cast only one vote during an election. Okay, the principle of one person one vote establishes and ensures political equality, which in turn ensures a democratic government that is accountable to the people. Okay, now next is analysis contemporary sources. अब ये देखो कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था या जो वोट देने का जो राइट दिया गया वो कैसे शुरुआत थी. द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफराज वॉज अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. हर एक वर्ल्ड के सभी पार्ट में अलग अलग समय पर ये यूनिवर्सल वोटिंग जो है वो अडॉप्ट की गई. आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1848 अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल्स इन यूरोप, फ्रांस इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज. सिर्फ मेल को ही वोट देने का अधिकार था, फ्रांस ने इसको अडॉप्ट किया.
लेकिन बाद में क्या हुआ देखो, वर्कर्स इन इंग्लैंड डिड नॉट ओरिजिनली हैव द राइट टू वोट, दिस स्टार्ट द चार्टिस्ट मूवमेंट एंड वोन द राइट टू वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल। लेकिन उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट की और लंबी स्ट्रगल उनके गवर्नमेंट के बीच और जो वर्कर्स थे उनके बीच में, एट लास्ट उन्हें भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यू ऑलरेडी रीड इन माइट बी इन सफ्राज मूवमेंट इन 6th standard. In the US, the African Americans were given the right to vote in 1965, where the African Americans were not the right to vote, but they are given this right to vote has given in 1965. After the introduction of Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965, तो वहाँ भी ऐसा था कि जो अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स हैं उनको भी अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था, तो उनके सिविल राइट्स एक्ट्स के थ्रू फिर उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त हुआ। फिर 1893 ये आपको याद रखना है, 1893 द न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट मीन्स ऑल एडल्ट आर एलिजिबल टू कास्ट द वोट। अब इंडिया में ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? इन इंडिया इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950 आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्ट की गई। ठीक है। नाउ साउथ अफ्रीका only very recently introduced universal adult suffrage in its free election in 1994. So this thing you have to remember, the first country which adopted the universal adult franchise, that is New Zealand. In which year? 1893. And India, in which year the universal adult franchise come into force? That is 1950. And if the question can ask which country has recently adopted the universal adult suffrage, so you can say South Africa. Now, sorry. Here is the question, when did India implement the universal adult franchise? So India implement the universal adult franchise in 1950. ठीक है। Now the second topic is election. The people are having the rights of vote. A vote, how that is can be conducted, vote can be given. It is through the election process, through the election. So what is election? During election, what has happened in the election? During election, citizens are free to vote for political candidates and policy of their choice. This enables them to participate in government formation and control in its working. A government that ignores the welfare of the people can easily be voted out. तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्शन के थ्रू सिटीजन आर हैविंग राइट टू फ्री फॉर वोट। ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल कैंडिडेट है या उनकी पॉलिसीज़ है, यदि पीपल आर लाइक दे कैन वोट, एंड थ्रू दिस पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब यदि गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो इफ़ दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, so people are having the right, they can easily be voted out in the next elections. After every 5 years they are having the elections. If the people are not satisfied for the candidates and their parties, the work of their parties, they can easily removed out with their vote. vote के through वो उनको remove कर सकते हैं। Understood? So here you can see election. Now you
can see the election can be viewed as a process through which the free will of people is ascertained. मीन्स वहाँ पर जो है लोगों की इच्छा को ज़्यादा निर्धारित होती है. यह प्रोसेस है जिसमें लोगों की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है. इट प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. ठीक है. और नेक्स्ट इज प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द people. In India, the Lok Sabha, the state legislative assemblies and the local bodies such as municipal corporation, municipal communities, Jila Parishad, Panchayat Samitis and Gram Panchayat comprise elected representatives. ये जो contain होते हैं ये लोकसभा जो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या जिला परिषद है, पंचायत समिति लोकल लेवल पर जो एंड ग्राम पंचायत है, दैट कंटेन्स द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इन सारी जगहों पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? इसी इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं. ठीक है. तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ये जो इलेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? ये थ्रू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हमने अभी आपको बताया पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ आवर कंट्री. नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. The Election Commission is an independent body entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections. इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या कंडक्ट करें? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करें. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अभी हमने आगे देखा था कि इसके जो सबसे जो हायर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नाउ यू कैन सी द हेड ऑफ द कमीशन इज नोन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अभी आगे हमने देखा अबाउट द TN सेशन. तो TN सेशन कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनके हेड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्शन प्रोसेस एंड द वेरियस फीचर्स रिलेटेड टू इट. नाउ लेट अस सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट, द कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द एंटायर कंट्री. ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है. जिसकी गवर्नमेंट अभी जाने वाली है या 5 ईयर्स उनकी कंप्लीट हो गए, उनके हाथ में नहीं होता है कि इलेक्शन के डेट अनाउंस करे. वो किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में. इट एंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन प्रॉपर मैनर. वो इस बात का भी ध्यान रखते कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई करप्शन है या नहीं है, वो या जिन्होंने इसके पीछे अपने रिप्रेजेंट वो रिप्रेजेंटेटिव सही है या नहीं पार्टीज़ की तरफ से. तो और सारी चीज़ें कौन ध्यान में रखता है? इलेक्शन कमीशन. थर्ड वन, इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट. और कितने वोटर्स हैं कंट्री में, उनके सारे वोटर्स मीन्स ऑल एडल्ट्स, दोज आर राइट टू वोट, उन सभी वोटर्स के लिस्ट भी कौन तैयार करता है? ये किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में. फोर्थ, इट इज़ डिटरमाइंस कंस्टिट्यूएंसीज. अब कंस्टिट्यूएंसी ये क्या करते हैं? कंस्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करते हैं. अब आपको मालूम है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है. मीन्स जो एक सेंट्रल लेवल पर वर्क होता है और दूसरा है स्टेट लेवल पर वर्क होता है. ठीक है. तो सेंट्रल लेवल पर यदि जब वर्क होते हैं तो उस तरह से स्टेट वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दी जाती है और फिर उसमें सभी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को मैदान में उतारते हैं और रिप्रेजेंट करवाते हैं. द कमीशन गिव्स
Fifth one, the commission gives recognition to the political parties and approves and allocates symbols to them. अब कोई भी अपनी political parties बना रही है तो उसका approval भी कौन देता है? The election commissions. ठीक है, और फिर उस पार्टीज़ के जो सिम्बॉल्स हैं वो भी कौन देता है? इलेक्शन कमीशन. जैसे सपोज़ कांग्रेस के जो सिंबल है वो क्या है? पंजा, और बीजेपी का जो सिंबल है वो कमल. तो ये जो पंजा है और ये कमल है, ये सिंबल्स का जो अप्रूवल है किसने दिया? इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया. यू कैन सी द लालटेन. लालटेन इज़ द सिंबल ऑफ आरजेडी एंड सिमिलरली साइकिल इज़ द सिंबल ऑफ समाजवादी पार्टी. तो मेन वेरियस पार्टीज एंड देयर सिंबल्स आर डिफरेंट. हाँ, तो these symbols are only approved by the election commission. And sixth, what is their another responsibility? It prescribes the code of conduct for political parties and candidates. ये जो code of conduct eligible for the election process. Now let us now come to the election process. What is election process? The electoral process begins with the duration of the existing assembly expire or the assembly is dissolved. ये जो electoral process है, ये election process है, वो कब शुरू होता है? देखा जब जो असेंबली है या लोकसभा असेंबली है या राज्यसभा विधानसभा असेंबली है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे उनका एक्सपायर होने का टाइम हो रहा, ख़त्म होने और उनका ड्यूरेशन ख़त्म होने का आने का होता है, तो उस समय या असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया किसी कारणवश, ये वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही है असेंबली, अपना जो मेजॉरिटी है शायद वो नहीं फुलफ़िल कर पा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्शन प्रोसेस बिगिनस होती है, शुरुआत होती है. ठीक है, अब इलेक्शन प्रोसेस शुरुआत करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? व्हाट इज़? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म की जाती है. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या फॉर्म की जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी? वी कैन सी. For the purpose of election to the Lok Sabha, the country is divided into constituency or small divisions. A constituency is geographical area that are elected candidate represents. यहाँ पर हमें बता दें, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिया है, तो इंडिया में यदि हमें इलेक्शन करवानी है तो पर्टिकुलर एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है 5 या 6 उसके पॉपुलेशन के हिसाब से. हाँ, उनके जोग्राफिक एरिया के हिसाब से, और यहाँ से हर एक एरिया से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं. ठीक है. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंसी आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज़ एक छोटा सा लेस पॉपुलेटेड एरिया है, तो उसमें ऐसे उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बना दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमेशा इस बात का ध्यान देखा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर जो सीट हैं, लोकसभा की सीट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने भागों में? 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी भागों में बांट दिया गया. उसी तरह दिल्ली के उसके पॉपुलेशन और साइज़ के हिसाब से उसे कितने भागों में बांट दिया गया है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी या रीजन जो है वो डिवाइड की जाती है. नेक्स्ट, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव
केवल इलेक्ट होके आता है। ठीक है, यदि 1, 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर खड़े होते हैं तो उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा वोट होगी, दोज आर गेटिंग हायर voting, that person to be elected from that place. Next is the officer in charge of conducting the election in the constituency is called the returning officer. ये आपको याद रखना है, returning officer, who is known as the returning officer. Returning officer is the in charge, officer in charge of the constituency is called the returning officers. Okay, now अब constituency तो decide हो गया, अब हो गई। अब कैंडिडेट्स डिसाइड करने होते हैं, तो कैंडिडेट्स डिसाइड करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होनी चाहिए, वी हैव टू सी दैट वन। ठीक है, द कैंडिडेट कंटेस्टिंग elections, what should be there? First, he should be a citizen of India. The candidate should be citizen of India. ये नहीं कि कोई बाहर का फॉरेनर है उसको कैंडिडेट बना दिया जाएगा। दूसरा, he should be age 25 years और above, 25 years से above हो तो ही वो कैंडिडेट एज अ पॉलिटिकल पार्टीज वो। he should not be convicted of any offense, कोई भी अपराध से वो रिलेटेड ना हो, कन्विक्ट ना हो, है ना। and he should not have been sentenced to imprisonment of 2 years or more, और इनको 2 साल या उससे अधिक कारावास ना हो, मीन्स उसको अपराध से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कोई भी करप्शन उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नाउ कनेक्ट द वर्ल्ड अराउंड। अब पहले क्या था कि वोटिंग, अब हम लोग देखते हैं कि वोटिंग किसके थ्रू होती है, ईवीएम मशीन के थ्रू। ये क्या है, ईवीएम मशीन है, इसके थ्रू होती है। लेकिन पहले क्या था, बैलेट बॉक्स होते थे। क्या होते थे, बैलेट बॉक्स। अर्लियर बैलेट बॉक्स वेर यूज्ड टू कास्ट वोट्स मैनुअली when elections were over. The ballot box were sealed and taken to counting stations. जब भी इलेक्शन कंप्लीट हो जाता था फिर वो उनको सील किया जाता था बैलेट बॉक्स को, और उसको काउंटिंग स्टेशन जहाँ पर उसे काउंट किया जाता था वहाँ ले जाया जाता था। द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। ये आपको याद रखना है, इन विच ईयर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, टाइम and cost of elections and simply the process of counting the votes. So one question can be also asked, what is the benefits of the EVM? EVM electronic voting machine की benefit क्या है? तो first it save the time, second the cost of election, simply it's cut it down, it is reducing the cost of elections, and simply the process of counting of vote, और ये जो प्रोसेस है काउंटिंग करने का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द तय हो जाता है, जल्द से जल्द हो जाता है। तो दिस वाज द बेनिफिट ऑफ ईवीएम मशीन। ओके, नाउ